Assalamu alaikum. So let's start with chapter 3, rotational dynamics. So what is rotational motion? The motion of a body in a circular path is called rotational motion or angular motion. So अगर आपकी बॉडी जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर पाथ में अराउंड a line or axis of rotation, then it is known as angular motion. For example, spinning wheel is an example of a rotational motion. So first we need to create analogy between translational and rotational motion. Translational motion में हमारे पास होता है displacement, velocity, acceleration, force, momentum, kinetic energy, specifically translational kinetic energy, and then the most important is mass. जब आप rotational में आ जाते हैं, so you will put a term angular displacement, so same angular velocity, angular acceleration, angular force, which is basically torque, momentum, again angular momentum, translational kinetic energy की analogy होगी rotational kinetic energy, and mass के लिए ये हम मजीद डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डिस्प्लेसमेंट के लिए हम d यूज करते थे, वेलोसिटी के लिए v, एक्सेलरेशन के लिए a, फोर्स के लिए f, मोमेंटम के लिए p. So angular displacement के लिए सेम टर्म तो नहीं यूज कर सकते, so there is a change. We have theta, omega, alpha, tau, l, and similar stuff. So इसमें सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो एक तो वो डिस्टेंस यूं ट्रांसलेशनल कवर कर रही है, लेकिन अगर उसको हम एंगल की टर्म में देखें थीटा, तो ये जो थीटा है ये डिस्टेंस, ये बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है एसआई यूनिट, वैसे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम डिग्री यूज भी करते रहे हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है. और रेडियन से क्या मुराद है? रेडियन से मुराद इतना डिस्टेंस कवर हो कि वो उसके रदास के बराबर आ जाए. द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस, तो उस वक्त जो एंगल बनता है दैट इज 1 रेडियन. और ये 1 रेडियन कितना होता है, इसको अगर आपने देखना हो तो आपको पता है एक दायरे में कितने एंगल होता है, पूरा 360 डिग्री, और रेडियन होते हैं 2 पाई. मे बी you could write it on left hand side and it to be on left hand side. So 1 radian is equal to 360 degree over 2 pi. So 1 radian is equal to 57.3 degree. So this is a relation of SI unit with another unit which is degree. इसके अलावा भी एक यूनिट होता है which is known as revolution. रेवोल्यूशन से क्या मुराद है? एक कंप्लीट चक्कर. सो अगर हम इसको रिलेट करें तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. एक पूरा चक्कर जो है दायरे में, उसके लिए हम 1 रेवोल्यूशन यूज करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन है, और रेडियन का डिग्री के साथ रिलेशन हमने देखा तो वो क्या आता है 57 डिग्री. और थीटा जैसे कि ये डिफाइन होता है एस ओवर आर. एस इज द लेंथ ऑफ एन आर्क और r is the radius of that circle. Okay, then there is angular velocity. So some same like the rate of change of displacement is equal to
average velocity, the same is case here. The rate of change of angular displacement is equal to angular velocity. So this is how we can define angular velocity. In terms of limits as well, you can do simply d theta over dt. You can put limit here. A time is very small that it approaches zero, so d theta over dt. और इसमें हम इसका रिलेशन भी बना सकते हैं कि आपको हमने एक रिलेशन पढ़ा s इज इक्वल टू आर थीटा, इसको आप t से डिवाइड कर दें, इसको आप t से डिवाइड कर दें, तो s ओवर t इज ट्रांसलेशन वेलोसिटी, थीटा ओवर t इज एंगुलर वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिखें आर क्रॉस ओमेगा, और दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आप राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। So you just need to draw first vector, second vector, rotate fingers from one to the second in a smallest angle. तो जो आपका thumb है that will point in the direction of cross product which is basically V है. So this is how you can define right hand rule and the relevant stuff. Okay, next is angular acceleration. So similarly, rate of change of velocity is equal to acceleration. Similarly, the rate of change of angular velocity is equal to angular acceleration, which you can define in terms of limits you like to. Again, आप रिलेशन अगर देखें एंगुलर एक्सेलरेशन का लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, so we just write this formula divided by t divided by t. This is linear acceleration and this is angular acceleration. क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में आपके पास ये यूं आ जाएगा, आर क्रॉस ओके। सो उसके लिए वेक्टर्स के लिए हम इसको चेक करते हैं। v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। लास्ट टाइम हमारे पास सिंपली वो बन गया था, लेकिन इट्स नॉट सिंपल एज केस हेयर। सो इसमें हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे क्या लगेगा, दोनों टाइम पे डिपेंड करते हैं। सो प्रोडक्ट रूल, एक दफ़ा पहले का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे, प्लस ये वैसे इसका डेरिवेटिव। सो डी वी ओवर डी टी क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन, और डी आर ओवर डी टी आपके पास होता है वी। सो वी क्रॉस ओमेगा प्लस ओमेगा। अब ये डी वी ओवर डी टी क्या है, सॉरी इट्स डी आर ओवर डी टी ओमेगा वैसे, और सॉरी ये आएगा आर वैसे, डी ओमेगा ओवर डी टी। सो डी ओमेगा ओवर डी टी क्या होगा आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। So this is a relationship between linear acceleration and angular acceleration. In terms of linear and angular velocity. तो इसमें से अगर हम दो इसे अलग-अलग कर दें, so this is one part, this is second part. This is known as the radial component, जिसमें radius है, and this is tangential. Okay, so the next is rotational kinetic energy, and as you can see it's part of CSS 2023. So kinetic energy simple का formula क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर m की जगह v की जगह मैं फॉर्मूला दर्ज कर दूं जो भी मैंने पढ़ा, v इज इक्वल होता है आर ओमेगा,
तो that will be half m r square omega square, और एम आर स्क्र को आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप ये इसकी नॉलेजी बनती है, क्योंकि इसकी नॉलेजी है ये, तो जो बाकी बचा वो मैथ की नॉलेजी है, which is known as moment of inertia. So this is the formula for rotational kinetic energy. This is formula for translational kinetic energy. So this is simply the formula which you need. और moment of inertia हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉलिड डिस्क है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्र। फॉर एग्जांपल आपके पास हूप है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्र। फॉर एग्जांपल स्फेयर है हमारी अर्थ जैसी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 एम आर स्क्र। So depend upon the symmetrical shape you are dealing with, you will put the value of moment of inertia. So हम मालूम कर सकते हैं, आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपसे अगर कहा जाए डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो आप क्या करेंगे, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4 आई आ जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। तो दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं दूसरे तरीके से, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्र। और क्योंकि इसके अंदर भी आर छुपा हुआ है, बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर, तो ये आ जाएगा v स्क्र ओवर आर स्क्र। जिसको चाहे आप काट दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 एम वी स्क्र। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क। इसी तरह अगर आप हूप की मालूम करना चाहें, तो वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्र, वेयर आई इज एम आर स्क्र, और अगेन इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वी स्क्र ओवर आर स्क्र। तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्र। सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी हमारी सिंपल होती है। और देन स्फीयर के लिए सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्र, जो कि 2/5 एम आर स्क्र है, और ये वी स्क्र ओवर आर स्क्र है। आप कैपिटल स्मॉल जो दिल करे लिख सकते हैं, बट एक ही फॉलो करें, तो ये बन जाएगा हाफ 1/5 एम वी स्क्र। सो ये इसका दूसरा पार्ट है। ये जो CSS 2023 में है, इसमें आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना है, डिस्क, हूप और स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोटेशनल, और उसके बाद उसकी स्पीड भी निकालनी है कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे आप तीनों को छोड़ते हैं, डिस्क, हूप और स्फीयर को, तो कौन पहले पहुंचेगा, तो पहले वही पहुंचेगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो आपका अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और तीनों से यहाँ तीन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से छोड़ा जाता है, तो कौन पहले पहुंचेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है। तो उसको मालूम करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्योंकि ऑब्जेक्ट आते हुए ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं, तो ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर होगा, और रोटेशनल वेरी करेगा डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको हम पहले अप्लाई करते हैं डिस्क पे। सो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर
और अभी हमने निकाला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क का क्या है, हाफ 1/4 mv स्क्वायर। तो इसलिए ही हमने v की टर्म में किया ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो 4 2 2 ज़ा 3 3 4, इनफैक्ट ये m हम काट सकते हैं, ये इधर जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो वी विल हैव 4/3 gh। सो दिस इज स्पीड फॉर डिस्क। इसी तरह आप हुप के लिए अगर मालूम करें, तो हुप के लिए अगेन mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और हमने क्या निकाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की, 1/2 mv स्क्वायर। तो हाफ प्लस हाफ फुल, mm से कट गया तो v इज इक्वल टू आ जाएगा gh। सो दिस इज फॉर हुप। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर स्फीयर, सेम पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल, जो कि क्या निकली है 1/5 mv स्क्वायर। तो एलसीएम ले लें 10, 5 + 1 6, mm से कट गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। सो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 5/3 gh। तो अब आप इसमें से कंपेयर करके देखें कि डिस्क की स्पीड ज़्यादा है, हुप की स्पीड ज़्यादा है, या स्फीयर की स्पीड ज़्यादा है। सॉरी, इसमें ये 10 और ये आ जाएगा 7, और ये कटेंगे नहीं, ये आ जाएगा 10/7। तो ये सिंपल GH है, ये 10/7 GH है, यानी 10/7 है हुप की स्पीड का, और ये 4/3 है हुप की स्पीड का। तो इसमें से देखें किसकी स्पीड दूसरे से ज़्यादा है, तो जिसकी स्पीड दूसरे से ज़्यादा होगी उसको हम फिर कहेंगे कि उसकी स्पीड इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा है और वो चीज़ पहले पहुंचेगी। सो अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, तो इसको मैं इधर साइड पे कर देता हूँ। सो वी हुप इज सिंपली GH, वी डिस्क इज 4/3 GH, और 4/3 को अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें और उसका अंडर रूट लें 4/3,